Hello, all my dear students. Good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel Ajay Tiwari Science Classes. All my dear students, as you know, I am just taking the classes of class 8th right now. So, in class 8th, recently we have completed the chapter cell structure and function. That was chapter number 8. So chapter number 8 is now completed and it's time to start a new chapter, that is chapter number 9, and said to be reproduction in animals. Okay, so after discussing cell structure and functions, now I am going to discuss your new chapter of your class 8 science, that is reproduction in animals. All my dear students, you will able to get all the concepts of the reproduction, types of reproduction, as well as we will also discuss some general terms those are related to reproductive systems of different animals. So we have to discuss the male reproductive as well as female reproductive system of human being also in this class. So first of all, let you know that the topics that will be covered in this chapter, those topics are, कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा? तो टॉपिक हम आपको पहले बताएंगे रिप्रोडक्शन, okay, then after you will able to understood this was the first. Second, types of reproduction, types of reproduction. नेक्स्ट यहाँ पे फिर टाइप्स में देखेंगे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction, and here we will discuss with male reproductive system, male reproductive system. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. then we will discuss about the fertilization, fertilization, and last development of embryo. Okay, all my dear students, तो क्या देखेंगे आप यहाँ से? What is reproduction? We will just define the reproduction here. Then after we will also discuss the types of reproduction. Then after discussing type of reproduction, you will get two kinds of reproduction, asexual as well as sexual reproduction. So in asexual reproduction, we will discuss various mode of asexual reproduction such as fission, budding, fragmentation, as well as regeneration, spore formation, vegetative propagation. ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा. Then after we will discuss in sexual reproduction, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट विल फॉर्म द मेल गैमीट यानी स्पर्म जो बनाएगा. सेकेंड वी विल डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट विल फॉर्म फीमेल गैमीट, दैट इज एग और ओवम. एंड एज यू नो दैट व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट विल बी फॉर्म देयर विल बी फर्टिलाइजेशन. फिर हम देखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. देन वी विल डिस्कस विद development of zygote, that is also known as development of embryos. Already written on your whiteboard that what is reproduction. You can imagine here, re means that again, production means that उत्पन्न करना, और हम कह सकते हैं कि produce करना. Okay, so reproduction means that this is a biological process. What is reproduction? Reproduction is a biological process by means of which an organism produce the offspring of their own kind. Reproduction एक ऐसा process है जिसके द्वारा एक living organism अपने ही तरह की दूसरी संतान को उत्पन्न करती है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं what is reproduction? Reproduction is a biological process. Reproduction is a biological process in which
an organism in which an organism produces offspring, an organism produces offspring of their own kind, of their own kind. ठीक है बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा अगर टफ लग रही है तो बहुत ही सिंप्लीफाइड डेफिनेशन एक आपको और बताता हूं. और वी कैन राइट प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस of their own kind, of their own kind. प्रोडक्शन ऑफ, यहां से देख सकते हैं सबसे छोटी डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, और यू कैन राइट यंग वंस, और यू कैन ऑल्सो राइट ऑफ स्प्रिंग. सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस, यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज नोन एज और इज कॉल्ड reproduction. ओके देन स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने देखा कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है. नाउ लेट्स इमेजिन व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, व्हाई दिस रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन. एज यू नो दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन, यानी जो भी इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसका एक टाइम डिसाइडेड है, उसकी एक लाइफ साइकिल है या उसकी एक लाइफ स्पैन है कि आप इतने दिन तक जिंदा रहेंगे. लेट्स कंसीडर, जैसे मान के चलते हैं आप किसी एक काऊ का एग्जांपल ले लो. आपके घर में एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो कि काऊ था या डॉग था वो है आपके पास. ठीक है, अब आपने वो जो काऊ या डॉग रखा है उनमें रिप्रोडक्शन ना हो, यानी वो किसी और काऊ या डॉग का प्रोडक्शन ना करे, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ टाइम एट विच योर डोमेस्टिकेटेड एनिमल दैट वाज काऊ, डॉग, कैट, बुफालोज, दे विल डाई, एंड आफ्टर दैट देयर विल नॉट बी एनी मोर. तो कहने का मतलब क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी जो कि लाइफ की है, किसी भी स्पीसीज की है, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है. तो यहां से हम देख लेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सो reproduction helps to maintain the continuity of life, continuity of life, यानी रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी या किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है. सेकेंड, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएशन का मतलब भिन्नता या कुछ कह सकते हैं स्पेशल फीचर्स. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू वेरिएशन organisms became more adaptable, or we can write adaptive, यानी रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, उस वेरिएशन की वजह से एडाप्टेशन होता है, और अगर एडाप्टेशन हो गया तो बेटर सर्वाइवल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट द types of reproduction, and in types of reproduction today we will discuss about just only one, asexual reproduction. And by means of asexual reproduction I will also provide beautiful diagrams of each type of asexual reproduction, and by seeing that you will able to imagine this
beautiful world of the various kind of animals and plants. So basically this chapter is reproduction in animals. That's why we have to discuss more frequently about the animals, not about the plants. So because both we are discussing asexual and sexual reproduction in kind of reproduction, that's why I will also explain some other types of asexual reproduction. Those were found in the case of plants, not only in the case of animals. तो मैं आपको पूरा asexual reproduction के जितने टाइप हैं मैं बताऊंगा, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे those were not given in your NCERT, so don't to be confused. Its motive just to clear all the concept and just to provide the map of all kind of reproduction. So now we are going to discuss about the types of reproduction. So let's discuss about types of reproduction. Types of reproduction. बेटा मैं आपको यहाँ से दो टाइप बता रहा हूँ. Here the category number 1, asexual reproduction. Asexual reproduction. The second one is here, sexual reproduction. Sexual reproduction यानी दो तरह का reproduction आपको बताया गया, asexual reproduction and sexual reproduction. What is the difference between these two? Here सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. हियर बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व यानी दो तरह का रिप्रोडक्शन है. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बताएंगे, केवल और केवल क्या पढ़ाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let you know that asexual reproduction here there is involvement of single parent. यहाँ पे केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज ए क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इन asexual reproduction clones are produced. Why clones are produced? Because in asexual reproduction very little variation or नेग्लिजिबल वेरिएशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भिन्नता, जिसे आप कह सकते हैं डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं आते हैं, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इस वजह से क्लोन जैसा कि पेरेंट होता है उसी तरह से ऑफ स्प्रिंग होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, डिट्टो कॉपी होती है. दैट्स व्हाई इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. Asexual reproduction is very quick mode of reproduction in which number of offspring can be produced within the short period of time. We will discuss later on in advantage and disadvantage of asexual reproduction. The motive of asexual reproduction discussion is that first of all we will discuss about the types of asexual reproduction. तो बेटा मैं आपको यहाँ asexual reproduction का type बता रहा हूँ. The first one is here that fission. Category number 1 of types of asexual reproduction, fission. Category number 2 we will discuss here budding. Third, fragmentation. Fourth, regeneration. Next, spore formation. Last, vegetative propagation. Actually these reproduction topics are included in your class 10th also and in class 12th also. That's why I am just giving you basic concepts, and by means of that you can use this basic concept in your higher classes 10th or 12th and there will not be any problem. So watch complete video till the end and also keep your pen
and paper ready to note down the main topics. Okay, so these are the basic types of asexual reproduction and vegetative propagation, because this takes place only in the case of plants and we are discussing with reproduction in animals. So आपको लग रहा होगा ये प्लांट्स क्या है, तो फिर आप यहाँ क्यों बता रहे हैं सर, ये केवल हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, नथिंग मोर देन दैट. सो लेट्स क्विकली डिस्कस. एक्चुअली फिजन हियर, व्हाट इज फिजन? parent body or shell or organism splits into two or more daughter cell, यानी फिजन में पेरेंट सेल, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दो या दो से अधिक डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है एंड बोथ द डॉटर सेल्स फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल आफ्टर ग्रोथ इन फेवरेबल कंडीशन. एग्जाम्पल ऑफ फिजन, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा फिजन में. एक होता है बाइनरी फिजन, and the second one is here multiple fission. ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है. मल्टीपल फिजन में आप कंसीडर करोगे प्लाज्मोडियम एंड हियर यू विल कंसीडर अमीबा. अब बेटा मैं आपको यहाँ केवल एग्जांपल्स बताता हूँ, उसके बाद वन बाय वन सबको एक्सप्लेन कर लेंगे. बडिंग आप देखोगे कहाँ, ईस्ट और हाइड्रा में. फ्रेगमेंटेशन आप कहाँ देखोगे, फ्रेगमेंटेशन आप देखोगे बेटा स्पाइरो गायरा में. रीजनरेशन यू विल गेट इन लिजार्ड में देख सकते हैं आप, एंड वी कैन सी इट इन ऑल्सो हाइड्रा. स्पोर फॉर्मेशन वी विल गेट इन राइजोपस, पेनिसिलियम, म्यूकर, etc. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो इस वजह से यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई खास मतलब नहीं. सो दिस इज डिटेल आउटलाइन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर टाइप्स अलोंग विद एग्जांपल्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. बेटा पहला हम आपको बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी, दैट इज व्हाट, फिजन. Here what is fission? This is the division of body or body parts or cells into two or more daughter cells, two or more daughter cells is known as fission. यानी फिजन क्या होता है, यहाँ पे जो पेरेंट होता है उसकी बॉडी या उसका सेल्स दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, इट मे बी टू टाइप्स, ये दो तरह का हो सकता है. यानी फिजन की दो कैटेगरीज है. फर्स्ट बाइनरी फिजन, बाई यहाँ पे लगा हुआ बेटा स्टार्टिंग में, मीन्स दैट टू. हियर पेरेंट बॉडी divided into टू डॉटर सेल्स. यानी यहाँ पे बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स बनती हैं. दैट विल लेटर ऑन फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिजम्स. हाउ मेनी? टू. एग्जाम्पल यू विल सी हियर अमीबा में बेटा क्या होता है, बाइनरी फिजन. जैसे मान के चलते हैं ये अमीबा है, कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता है. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी व्हाट, न्यूक्लियर डिवीजन. सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन. ओके, देन आफ्टर देयर विल बी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी ये दो डॉटर सेल्स में यहाँ से चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का अगर हो रहा है कौन, रिप्रोडक्शन, तो उसे आप क्या कहते हो, बाइनरी फिजन. मैं आपको एक ब्यूटीफुल डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा. Yes, all dear students, you can see
here that binary fission is given and binary fission is given in the case of amoeba. आप यहाँ से एक खूबसूरत सी पिक्चर देख सकते हैं जो दिखाया गया है बाइनरी फिजन को अमीबा में. Let's consider second category B, multiple fission. Multiple fission, बेटा नाम से ही आपको लग रहा होगा multiple means that many. So here parent cell divided into many daughter cells, many daughter cells that later on forms many individuals. For example, you can take the example here of प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं एग्जाम्पल किसमें, मल्टीपल फिजन में. अब ये आपका पहला हो गया. लेट्स कंसीडर सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग. व्हाट इज बडिंग? बडिंग में क्या होता है? इन बडिंग ड्यू टू repeated cell division, due to repeated cell division and outgrowth or bulb like, or we can say that bud like, दोनों कुछ कह सकते हैं आप. outgrowth is formed that later on detaches from parents and form new individual in favorable condition. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लगातार किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में सेल डिवीजन होगा और उसमें स्टोरेज होगा न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ बन जाएगी. वो आउटग्रोथ फिर पेरेंट्स से डिटैच हो जाएगी और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, इसका मतलब प्रॉपर मॉइस्चर मिला, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर मिला और इसके साथ साथ प्रॉपर फूड मिलेगा, वो फेवरेबल कंडीशन में नए इंडिविजुअल को बनाने का काम करेगी. एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज हियर ईस्ट एंड हाइड्रा, यानी ईस्ट और हाइड्रा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. कहाँ? बडिंग में. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल डायग्राम. यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी बडिंग इन द केस ऑफ ईस्ट. यहाँ पे आपको एक ईस्ट सेल दिखाई गई जिसमें बडिंग होती है और लेटर ऑन फिर वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है. यहाँ से देखिए हाइड्रा के केस में, फिर आगे आप देख सकते हैं फिर से हमने हाइड्रा का केस ही कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है. Okay, all my dear students, so let's discuss about next, that is fragmentation. ठीक है, अब आपका जो अगली कैटेगरी है in the case of asexual reproduction, that is fragmentation. So fragmentation, first of all, it is found in the case of multicellular organisms, यानी ऐसे organisms जिनके पास बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, उनमें होता है कौन? फ्रैगमेंटेशन. here organisms splits into many fragments and each fragment grows and forms new individual in favorable condition. What is the meaning of favorable condition?
The meaning of favorable condition is that proper moisture, proper temperature, proper food availability, etc. So example is here Spirogyra. We can take the example of molds. We can take the example of here molds, etc. So in Spirogyra as well as in the case of molds, the process of fragmentation is found. अब आप कहेंगे सर आपने तो केवल प्लांट्स का ही बताया है. यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट वर्म्स एंड वन मोर लाइकेंस. फ्लैट वर्म और लाइकेंस भी एग्जाम्पल है किसका, फ्रैगमेंटेशन का. यहाँ क्या होता है, मान के चलते हैं ये माइसिलियम है या प्लांट बॉडी है, ये क्या होती है कई खंडों में टूट जाती है कुछ इस तरह से. फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3. मैं आपको एक स्लाइड प्रोवाइड करूंगा, वहां से मैं आपको इसको बहुत क्लियर कट में बताऊंगा. सो बाय मीन्स ऑफ दैट ईच ऑफ द फ्रैगमेंट ग्रोज एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल इन फेवरेबल कंडीशन. यस, यू कैन सी हियर फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो 2 डॉटर सेल्स पे या 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जा रही है. ठीक है, तो ये है फ्रैगमेंटेशन जो कि होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. Let's discuss one more category number 4, that is regeneration. Regeneration, it is clear from its name that what is regeneration. Re means that पुनः, और जनरेशन मतलब ग्रो करना यानी रीग्रो, बट इट इज नॉट एक्चुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज हियर ओनली कट और डिकेड और लॉस्ट पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज जस्ट रीस्टोर. आपने देखा होगा आपके गलों में लिजर्ड होती है, लिजर्ड की अगर पूंछ कटती है तो बाद में फिर से वो आ जाती है. इसी तरह से आपका लीवर है, लीवर आपका 10% भी बचा हुआ है तो वो रीजनरेट कर जाता है. आपने देखा होगा कहीं पे कट जाती है आपकी स्किन, वहाँ पे स्किन फिर से आ जाती है, यानी स्किन आपकी बॉडी में, लिवर आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स देखिए घट बढ़ जाती है, मसल्स आपकी बॉडी में. ऑल दीज हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन. In the same manner in the case of hydra there is also a power of regeneration. In lizard there is also power of regeneration. So here regeneration means that this is the process of renewal, restoration and growth of tissues. In simple words we can write cut or loss or decayed part regrown, फिर से ग्रो कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा लिजर्ड की टेल, इन द केस ऑफ हाइड्रा यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट, आगे लगा लीजिए, etc. So this was all about the fragmentation and regeneration. Yes, all my dear students, you can see here regeneration in the case of flatworms. When a portion is cut, that later on regenerated or regrown. बेटा एक और यहाँ से देखते हैं, that is spore formation. So fifth category, that is here spore formation. What is spore formation? Spores क्या होते हैं बेटा? These are spores, we can write spores are specialized, or we can write special reproductive structures. Spores are special reproductive structures formed in sporangia. स्पोरेंजिया को हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, स्पोरेंजिया, और वी कैन राइट स्पोर मदर सेल. चूंकि स्पोर बनते हैं इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल. एंड इट ब्रस्ट, ये क्या होती है, फट जाती है. एंड रिलीज द स्पोर which grows in favorable condition,
which grows in favorable condition and forms new individual, वो क्या करते हैं बेटा, ग्रो कर जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने के बाद वो एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं. सो ऑल दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस विथ योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ दिस. एग्जाम्पल में बेटा आप ले सकते हो राइजोपस, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ म्यूकर, पेनिसिलियम. ठीक है, पेनिसिलियम में भी आप इसका एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो, बट दैट इज मोर दैन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Yes, all dear students, you can see here spore formation, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, स्पोरेंजियम में, और स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो रही है और यहाँ पे स्पोर्स बाहर आ रहे हैं. एक और मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपागेशन. एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट, यानी प्लांट के ही पार्ट से नया प्लांट बन जाता है. जैसे आपने देखा रूट, ठीक है, रूट से नया प्लांट बन जाए. आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो और डहलिया में नया प्लांट रूट पोर्शन से बनता है. आपने देखो लेमन, रोज, हिबिस्कस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका आप एक कोई ब्रांच लगा दें या स्टेम अगर उसका आपको मिल जाए वो लगा दें तो वहाँ से भी वो ग्रो कर जाते हैं. तो रूट, स्टेम और लीव्स, इन तीनों पार्ट से नए प्लांट्स बन सकते हैं. रोज लेमन हमने आपको बताया वो स्टेम से बन सकता है. लीव्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम एक आपका ऐसा प्लांट है जिसके लीफ से नया प्लांट बनता है. इसी तरह से एक बिगोनिया है. सो बिकॉज ऑल दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट. इन द लास्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो आओ बच्चों देख लेते हैं एडवांटेज, एंड लेट्स कंसीडर अनदर वन, डिसएडवांटेजेस. Disadvantages of asexual reproduction. So let's quickly discuss advantages here. Only single parent involved. Only single parent involved, एक ही parent involved होता है. Quick process, ये क्या है बेटा? Quick process in favorable condition. Quick process in favorable condition. Forming number of offspring, number of offspring within short time, कम समय में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जा सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से. कहाँ? फेवरेबल कंडीशन में. एक और देखते हैं, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड. क्लोन्स आर प्रोड्यूस. ये क्लोन्स क्या होते हैं बेटा? क्लोन्स को हम कह सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, यानी जैसे कि पेरेंट थे सेम एज इट इज क्या है उनके ऑफस्प्रिंग, या हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. यानी बाहर से देखने में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने पेरेंट्स के तरह ही होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. सो बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन फॉर्म क्लोन्स. वी कैन गेट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, as well as most important thing is here that here it is just only one involvement of parents and it's very quick process. अब इधर आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ बेटा. no variations, hence no adaptation. यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत कम या ना के बराबर वेरिएशन होता है. इस वजह से एडाप्टेशन नहीं हो पाता है, स्पेसिफिक फीचर्स नहीं डेवलप हो पाते हैं, न्यू फीचर्स नहीं डेवलप हो पाते हैं. दैट्स वाई ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल
to adapt with the environment, it means that there is not better survival. तो इस वजह से देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अलग अलग रास्ते से वहाँ पे आपको गैमीट्स आते हुए दिखते हैं, इस वजह से वेरिएशन हो जाता है. लेकिन यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा कि वेरिएशन ना के बराबर होता है, जिससे एडाप्टेशन कम होता है. तो उससे क्या होगा, डिजीज फ्री organisms may not be obtained, क्योंकि एडाप्टेशन नहीं होगा. और अगर मान के चलिए कोई डिजीज थी पेरेंट्स में, तो वो ऑफ स्प्रिंग में आ सकती है. एक और देख लेते हैं बेटा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. एक और इसमें इन अनफेवरेबल कंडीशन it may slows down, ये स्लो हो सकता है, और स्टॉप्स. ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर फेवरेबल कंडीशन है, सुटेबल मॉइस्चर है, टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, फूड की अवेलेबिलिटी है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस क्विकली, रैपिडली. लेकिन अगर यही कंडीशन रिवर्स हो गई, वर्स हो गई, अनफेवरेबल हो गई, तो उस कंडीशन में या तो ये स्लो हो जाएगा या तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर वेरियस टाइप्स. A very thanks to all of you for watching the video. Like always, keep smiling. Have a nice day.